Good morning, everyone. So I'm going to start your new unit today, that is on Payment of Gratuity Act of 1972. पहले बात करते हैं what is the application and extent of its application. It extends to the whole of India. India में in every state and union territory it is applicable. It does not extend to the state of Jammu and Kashmir as in so far as it relates to plantations or ports. मतलब कि ग्रेचुइटी एक्ट उन ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो प्लांटेशंस और पोर्ट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है. Other than that, it will apply to every factory, mine, oil field, plantation, port and railway company. Then every shop or establishment within the meaning of law for the time being in force in relation to shops or establishments in a state. तो बेसिकली स्टेट्स में जितने भी शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, इन विच 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months, यानी कि एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज जहाँ पे होंगे at any point of time during the last year, during the last 12 months, the Payment of Gratuity Act will apply on that factory or establishment. Such other establishment or class of establishments in which 10 or more employees are employed or were employed on any day of the preceding year as the central government by notification may specify in this behalf. So एक तो क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइज जो भी establishments हैं जिन पे एटलीस्ट 10 or more people हैं, या फिर other than that central government can also notify of any particular establishment or a class of establishments on which this act will apply. But in those cases as well, 10 or more employees must be there. Okay. A shop or establishment to which this act has become applicable shall continue to be governed by this act, notwithstanding that the number of persons employed therein at any time after it has become so applicable falls below 10. ये जैसे हमने पुराने भी अपने लॉज में देख लिया कि एक बार once the law is applicable on an establishment, तो ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर मंथ या किसी पर्टिकुलर डे पे ऐसा हुआ कि टोटल एम्प्लॉयज 10 से कम हो गए तो एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है. उस दिन भी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अगर 10 से कम हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर डे या कुछ वीक्स के लिए या एक महीने के लिए या जो भी है, इट विल नॉट मीन कि अब ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा उन पे. देन ऑल्सो इट विल कंटिन्यू टू बी अप्लाई. The act is applicable to all employees irrespective of their salary. यानी कि यहाँ पे कोई मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी का लिमिटेशन नहीं है लॉ में. They say it is applicable to all the employees on the establishment on which it is applicable. Okay, so that is about the extent and application of the payment of gratuity. What are the objectives now? What are the objectives of the act? One is to provide for a scheme for payment of gratuity to employees. ठीक है, employees को क्या देनी, gratuity देनी. What will happen with that? It will provide social security to the employed persons in the event of retirement. Because gratuity का जो money है, when is it given to the employee? When he finally retires from his work. Okay. Then the third is to provide financial support to employees or their dependents subsequent to the death of the employed person. In case an employee dies, so in that case also the company जो उनका over the years जितना gratuity इकट्ठा हुआ होगा वो एक उनके एक तरह से employment terminate हो गई on his death, तो वो सारा इकट्ठा हुआ पैसा उनके dependents को या फिर employees को उनके family को मिल जाएगा. Then the fourth point is to provide retiring benefit to employees who have rendered long and unblemished service to the employer and thereby contributed to the prosperity of the employer. What the employee works for 20 years, 30 years, जितने भी साल उन्होंने अपने employee को serve किया है. So this is like a benefit which is being given back to him, that in his retiring age he will get some benefit for his long and अनलिमिटेड सर्विस. उन्होंने अच्छा काम किया है इतने लंबे टाइम के लिए एम्प्लॉयर के लिए एंड कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर. प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि उन्होंने बिजनेस में हेल्प की है, बिजनेस में काम करवाया उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस था. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेचुइटी. टू प्रोवाइड द फाइनल पॉइंट इज टू प्रोवाइड फॉर मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट और रूल्स इन सेंट्रल स्पेस. जहाँ जहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल है
तो सेंट्रल स्फेयर्स में क्या लिखा है कि इस एक्ट में भी वो ये बात कह रहे रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, द मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, कहाँ एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, उसके रूल्स इस्टेब्लिश किए, राइट? सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ gratuity act. It is nothing but it is a some payment of a sum amount to an employee as for his, which is paid at the end of his employment at the time of his retirement for his benefit. ठीक है? Now अब इस एक्ट में भी जो डेफिनेशन है एप्लीकेबल वो देखते हैं. What is an appropriate government? इस केस में भी जैसे like in all the other acts, appropriate government in relation to an establishment belonging to or under the control of the central government, having branches in more than one state, या फिर a factory under the control belonging to or under the control of the central government, or a major port, mine, oil field or railway company. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में कौन कौन से आ गए जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप में ही है, उनके कंट्रोल में, या फिर कोई फैक्ट्री है किसी किसी पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड और रेलवे कंपनी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, सो दे हैव ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट. एंड फाइनली तो इस केस में the central government is the appropriate government, and in all the other cases the state government is the appropriate government. ठीक है? Now the second is completed year of service. Completed year of service is very important in case of payment of gratuity. Okay, so यहाँ पे इसीलिए बात कर रहे हैं completed year of service का क्या मतलब है. It means continuous service for 1 year. जब gratuity की calculation होती है ना, तब वो देखा जाता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. कंप्लीटेड ईयर्स में वो माने, उनका कहने का मतलब है कि कंटिन्यूसली 1 साल के लिए काम किया है, एम्प्लॉयमेंट में ब्रेक है या नहीं, या कितने ईयर्स का ब्रेक है, वट एवर इट इज. सो 1 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इज होल 1 ईयर. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी. एम्प्लॉय में एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस. अप्रेंटिस को एम्प्लॉय नहीं कंसिडर करते. Employed on wages in any establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company or any other shop. Okay, to do any skilled, semi-skilled or unskilled labor, manual, supervisory, technical or clerical work. तो सारे types of work include कर दी, सारे types of organization include कर दी. Whether the term of such employment is express or implied, whether or not such person is employed in a managerial or administrative capacity, but does not hold any such, it does not include any such person who holds a post under the central government or state government and governed by any other act or any rules providing for the payment of gratuity. तो एक तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रेंटिसेस को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सब लोग हैं डूइंग एनी काइंड ऑफ लेबर वर्क, doing work in any particular kind of establishment. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो फर्क नहीं पड़ता. मैनेजरियल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, नहीं फर्क पड़ता. एवरीबडी इज एन एम्प्लॉय. लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन. if a person is holding a post in a central government or a state government office, उस केस में अगर उन्हें ऑलरेडी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी होती है किसी और एक्ट के अंडर, या सिमिलर रूल्स हैं, सिमिलर एक्ट है, तो उनके ऊपर अलग से ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन सम अदर एक्ट. ठीक है? Then the employer, who is an employer in this case? Employer means in relation to any establishment, factory, oil field, plantation, railway company or shop. इन सब के जो ओनर्स हैं कौन कौन हो सकते हैं? First is belonging to or under the control of the central government or a state government or a person or authority appointed by the appropriate government for the supervision and control of employees, where no person or authority has been appointed, the head of the ministry or department concerned. तो एम्प्लॉयर देख लो, अलग अलग केसेस में कभी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कभी कोई अपॉइंटेड अथॉरिटी होगी, कभी कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या फिर कोई अपॉइंटेड नहीं है पर्टिकुलरली, then it can be the head of the department or the ministry concerned. मतलब जिस भी टाइप ऑफ
इस्टेब्लिशमेंट होगा तो वो जिस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तब होगा. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉयर. यू कैन सी. The second point is the establishment belonging to or under the control of any local authority. The person appointed by such authority for the supervision and control, or where no person has been appointed, the chief executive office of the local authority. Local authority, local government, municipal गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाइए लोकल लेवल पे, उनका jurisdiction हो सकता है. ठीक है. And in all other cases, the person who or the authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company, or shops, and where the said affairs are entrusted to any person called the manager, managing director, or by any other name, then this person would be called as an employer. Okay, so you can see डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स में कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई अपॉइंटेड पर्सन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, लोकल लेवल पे भी हो सकता है, या फिर सिंपली अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स in a business, which is how a business normally operates, will be the employer of the person establishment. Now wages क्या है? Gratuity is calculated on the basis of wages. ठीक है. तो wages क्या क्या है? It means all the emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment, and which are paid or payable to him in cash, includes dearness allowance but does not include bonus, commission, house rent allowance, overtime wages, and any other allowance. तो basically क्या हो गए wages? Basic wages plus dearness allowance. बाकी सब included नहीं है for the purpose of payment of gratuity. Okay. Now there is something called a controlling authority in this case also. Controlling authority means an authority appointed by the central government who shall be responsible for the administration of the act, and different authorities may be appointed for different areas. यहाँ पे controlling authority अपनी अगर state government is the appropriate government for that organization, then they will appoint, or the central government will appoint somebody. They will oversee the overall administration of the act, overall implementation, जो भी system जैसा चल रहा है उनकी authority बन जाएगी. That will be called the controlling authority. Okay. Now there is something called continuous service. देखो एक हमने पढ़ा यहाँ पे completed years of service, right? Completed year of service use होता है जब gratuity की calculation होती है. तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि completed year of service का मतलब है continuous service for 1 year. Okay, now we need to know कि अब continuous service का क्या मतलब है, वो भी अलग से बताया गया है. It is uninterrupted service which may be interrupted on account of sickness, accident, leave, absence from duty without leave, यानी कि ब्रेक है एक तरह से, lay off, strike, lockout or cessation of work not due to the fault of the employee. कंटिन्यूस सर्विस मतलब एक चीज तो ये इंक्लूड हो गई कि कंटिन्यूसली एम्प्लॉय काम कर रहा है. इट इज अनइंटरप्टेड सर्विस. उसमें इंटरप्शन कैन ओनली बी दैट द एम्प्लॉय गॉट सिक, कोई एक्सीडेंट हुआ, he took a leave, he was laid off, कंपनी ने टेम्परेरीली ले ऑफ कर दिया, स्ट्राइक्स हुई थी, लॉकआउट हुआ, वो फैक्ट्री में हो जाता है, or cessation of work, the work was stopped in the factory due to no fault of the employee की गलती की वजह से नहीं हुआ था. ठीक है. तो that is called uninterrupted service. The second point is whether such interrupted or uninterrupted service was rendered before or after the commencement of the act. यानी कि पुराने organizations भी अगर कोई हैं, because act कब आया 1972 में, उसके पहले के भी जो organizations हैं अगर तब से employee काम कर रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंक्लूड होंगे उनके कंटिन्यूस सर्विस यूज में. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज वेयर एन एम्प्लॉई नॉट बीइंग एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट. देखो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट वाले के लिए कंटिन्यूस सर्विस के टर्म्स डिफरेंट है. यहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉयज की ही बात हो रही है, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट को एक्सक्लूड कर दिया. बिकॉज हमने पढ़ा था ना सीजनल एस्टैब्लिशमेंट क्या है, दे आर ओनली ऑपरेटिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर. Where an employee is not in continuous service for 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service for 1 year or 6 months if the employee has, during the immediately preceding 12
or 6 calendar months worked under the employer. तो देखो एक तरह से रिलैक्सेशन मिल रही है एम्प्लॉय के लिए कि अगर उन्होंने इस साल में कंटिन्यूसली 1 साल या कंटिन्यूसली 6 महीना नहीं किया है काम, फिर भी हम उनको मानेंगे कि उन्होंने ही हैज़ बीन इन कंटिन्यूस सर्विस अगर उन्होंने प्रीवियस कैलकुलेशन से प्रीवियस 6 मंथ्स किया है या प्रीवियस 12 मंथ्स किया है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी उनको कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा. ओके. उसके अलावा क्या है, अब डिफरेंट केसेस हैं. इफ द एम्प्लॉय वाज एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड इन अ माइन, तब उनके कितने ईयर्स माने जाते हैं. हु इज नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर और 12 मंथ्स, तो देखो माइन में वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं. इट कैन नॉट बी नेसेसरी कि पूरे 12 मंथ्स या पूरे 6 मंथ्स के लिए रहेंगे. तो जितने भी टाइम के लिए जा रहे हैं इट विल बी काउंटेड एज 190 days. ठीक है. एंड एम्प्लॉयर हु इज नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस फॉर 6 मंथ्स, उन माइनर्स के लिए माना जाएंगे 95 days. देखो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बात की थी इसकी जब सीजन नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस की बोल रहे हैं, क्योंकि नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस इन केसेस में हो रहा है 12 कैलेंडर मंथ्स या 6 कैलेंडर मंथ्स तो नहीं है, बट दे आर वर्किंग इन वेरी हार्श एनवायरमेंट्स इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो इसके लिए क्या माना जाएगा कि उन्होंने पूरे साल काम किया. अगर माइनर्स के लिए माना जाएगा उन्होंने 190 days किया है एंड 6 मंथ के लिए माना जाएगा 95 days. ठीक है. सो क्योंकि अभी मैं आपको फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी में, तब you will understand better. The second point is if the employee was employed in an establishment which works for less than 6 days a week. अब कंपनी के वर्किंग डेज ही 6 दिन से कम है, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज जितने भी बनेंगे 1 साल के, तो उनके लिए 190 days कंसिडर करता है ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. और जो 6 मंथ्स के लिए अ पर्सन हु वाज नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस फॉर 6 मंथ्स, उनके लिए 95 days कंसिडर करते हैं. एंड इन ऑल द अदर केसेस, तो माइनर्स एक्सक्लूड करके और लेस दैन 6 days एक्सक्लूड करके, ऑल द अदर केसेस 240 days are considered and 120 days are considered. Simple. Okay. Now, while computing the number of days on which an employee has actually worked, the following days shall be included. कौन से इंक्लूड होंगे? He has been laid off under an agreement. वो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था. देखो lay off in the first point, lay off or lay off, strike, lockout. ठीक है. तो उस केस में क्या है, इंक्लूड करते हैं. He has been on leave with full wages earned in the previous year. He went on a paid leave. Or he has been absent due to temporary disablement caused by an accident arising out of and in the course of his employment. अगर employer के काम करने फैक्ट्री में काम करते हुए एम्प्लॉय ने कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, he sustained some injuries and he was temporarily disabled and उस वजह से he was absent from work, तो उनके जितने नंबर ऑफ डेज एब्सेंट थे वो उनकी ग्रेचुइटी पेमेंट के लिए इंक्लूड किए जाएंगे. Okay. And the last thing is that in case of a female who has been on maternity leave, then the total period of such maternity leave does not exceed 12 weeks. Maximum 12 weeks का वो कह रहे हैं benefit देंगे for the payment of gratuity for a person who has gone on maternity leave. तो ये सब क्या है, extra pointers बता दिए कि definitely will be included. अब देखो when and to whom is gratuity payable. Gratuity कब payable होती है and किसको दी जाती है. First off is gratuity is payable to an employee if there is continuous service of 5 weeks, not necessary in case of death or disablement. तो death और disablement का exception है, वहाँ पर 5 से कम करते हैं, कितना कम करते हैं depends on the case. Otherwise there is continuous service of 5 years. On termination due to superannuation or retirement, resignation, death or disablement due to the accident or disease, and in case of death the amount to be paid to his nominee or his legal heir if the nomination is not made. तो gratuity throughout employment होता है. On termination of the employment or superannuation, यानी कि जब employee की the job is he's finally quitting his job, he's retiring or he has been terminated, उसको जो benefits मिलने का टाइम आएगा तब देखेंगे उन्होंने एटलीस्ट 5 साल काम किया हो, तब वो एलिजिबल होंगे. एंड ही इज फाइनली रिजाइनिंग और या फिर he has died or he is now disabled due to an accident or disease,
that time the gratuity will become due for him, and in case of his death, this amount of gratuity will be paid to his family, to his nominee or his legal heir. Legal heir, अगर कोई nominee अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था फॉर्मेलिटीज में, तो उनका जो भी लीगल हेयर बनता है उनको दे देता है. Where any such nominee or heir is a minor, the shares of such minor will be deposited with the controlling authority, who will invest the same for the benefit of the minor in such bank or financial institution as may be prescribed until such minor attains majority. किसी employer किसी employee का nominee या figure is a child right now. He has not turned 18. He is a minor. In this case, हमने जो controlling authority पढ़ी थी कि appropriate government बनाती है. This controlling authority will take control. They will step in and जो gratuity amount payable है वो उनके पास deposit हो जाएगा, and they will invest it in a bank or a financial institution, and वो तब तक उनके under रहेगा जब तक this nominee or the heir turns 18. ठीक है. Superannuation का क्या मतलब है? Superannuation means the attainment of by the employee of such age as fixed in the contract or conditions of service, as the age on the attainment of which the employer shall vacate the position. Superannuation यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, here. तो वो उसका मीनिंग बता रहे हैं that superannuation of an employee can happen due to any number of reasons. He stopped working because he retired, or he uh, he was disabled, or he resigned, or simply he died. या फिर superannuation होता है तो उस केस में भी एम्प्लॉय की जॉब टर्मिनेट हो जाती है. तो यानी कि फिक्स अगर आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि इतने ईयर्स या इतने मंथ्स का जॉब है, तो अगर वो खत्म हो गया मतलब कि आपने अपनी कंडीशंस फुलफिल कर दी. और अगर इन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इतनी एज पे सुपर एनिमेशन हुआ तो उतनी एज. सो बेसिकली इट इज द टाइम आपने उसकी वो एज पहुंच गए हैं, यू अटेन दैट एज जहाँ पे आपका या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या फिर आपकी एज हो गई है जब आपको वो पोस्ट छोड़नी है, तो यानी कि आपकी रिटायरमेंट एज आ गई है, राइट. दैट इज सुपर एनिमेशन, एंड उस टाइम पे द ग्रेचुइटी बिकम्स पेबल. ओके. Retirement means termination of service other than on superannuation. So, जब simply the when employee has attained the age of retirement. तो उसकी वजह से he will stop working now. His employment contract will terminate. And finally, disablement क्या है? Disablement का जैसे हमने बताया, such disablement which incapacitates an employee for work which he was performing earlier before the accident or disease resulting in that disablement. Employee suffered an injury in an accident, or he caught certain disease जिसकी वजह से जितनी कैपेसिटी में वो पहले काम कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे. ये डिसेबलमेंट हो गई है. तो इन केस ऑफ डिसेबलमेंट कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस अलग से देखे जाते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है. अगर वो टेम्पररी डिसेबलमेंट में एब्सेंट थे तो एंड उनकी ग्रेचुइटी कैलकुलेट होती है. देखो केस लॉज थोड़े से हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, एक तरह से आपको समझ में आता है कि रियल वर्ल्ड में ग्रेचुइटी पेमेंट में जब डिफरेंट इश्यूज आते हैं कैलकुलेशन में, पेमेंट में, तब कैसे डील किया जाता है. So in the first case, Patadurila K. Damodaran versus M. Kasim Kanu of 1993. You don't need to remember the name of the cases. आपको उनका judgment जो था वो ज़्यादा important है आपके लिए. ठीक है, तो इस पे फोकस करना. आप एग्जाम में इनको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो. आप अभी इन्हें समझने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. केस लॉ का नाम अगर आपको याद रहता है गुड इनफ, नहीं रहता है कोई बात नहीं. यू कैन जस्ट से कि in different case laws and judgments this was talked about. तो क्या बताया गया था? By change of ownership, the relationship of employer and employee subsist, and new employer cannot escape from the liability of the payment of gratuity to the employees. कई बार क्या होता है, फैक्ट्री का या बिजनेस का ओनर चेंज हो गया, ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस केस में ऐसा नहीं होगा कि जो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है ग्रेचुइटी की वो खत्म हो जाएगी. The new employer cannot escape from the liability
of the payment of gratuity. Employer-employee का relationship will continue to go on. It will subsist. ठीक है? The second is Texmaco Limited versus Sri Ramdhan 1992. An employee resigning from service is entitled to gratuity. कोई एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है अपने जॉब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवर द इयर्स उसका जितना ग्रेचुइटी इकट्ठा होना है वो उसको नहीं मिलेगा, वो दिया जाएगा. The third is Administrator Sri Jagannath Temple. Employees employed in a temple are entitled to gratuity. कोई टेम्पल की ऑर्गेनाइजेशन है on which the act is applicable, their employees are also entitled to gratuity. The fourth is Metter Spinning Hills versus Deputy Commissioner of Labour 1983. Non-acceptance of the resignation is no hurdle in the way of an employee to claim gratuity. Non-acceptance of resignation यानी कि employer ने resignation accept नहीं किया employee का, एक employee को organization छोड़नी है, but he's not accepting it. He's like नहीं, I will not let you go, you will have to work and so on. वो जब तक वो फाइट चलती रहेगी, does not mean कि एम्प्लॉय अपनी ग्रेचुइटी क्लेम नहीं कर सकता. एम्प्लॉय अपनी ग्रेचुइटी क्लेम कर सकता है बिकॉज उन्होंने अपनी तरफ से तो रिजाइन कर दिया. ओके. Then fifth is in case of Jeevan Lal 1929 Limited versus Controlling Authority 1982. An employee who is re-employed without any break in service will be eligible for gratuity. Re-employment हुई है, मतलब कोई एम्प्लॉयर कि कोई एक सर्टेन एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा था, उन्होंने स्विच कर लिया, फिर दोबारा वो उस पुरानी कंपनी या फैक्ट्री में वापस आया, बट देयर वाज नो ब्रेक इन सर्विस. इसीलिए मैंने आपको ऐसा एग्जांपल देके बताया. तो उस केस में इट विल दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी. देन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस लेबर कोड. A retrenched employee is entitled to gratuity. Retrenchment यानी कि एम्प्लॉय की टर्मिनेशन हो रही है जो डिफरेंट केसेस में. It does not mean that the act will not apply. The act will continue to apply. He will continue to be eligible to claim the amount of gratuity. अब कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन क्या है, अलग अलग तरह से होती है. कैसे होती है देखो, मंथली रेटेड एम्प्लॉय यानी कि जिसको हर महीना सैलरी मिलती है, उनके लिए अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट होती है. लास्ट ड्रॉन मंथली वेजेस, जो उनकी मंथली सैलरी एनुअली फर्स्ट ऑफ, मल्टीप्लाइड बाय 15/26. 15/26 गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दिया है, मल्टीप्लाइड बाय द number of completed years of service including a part thereof in excess of 6 months. completed years of service हमने पढ़ा, कितने डेज बनते हैं हमने देखा, तो उसको years में कन्वर्ट करके देखेंगे अलग अलग जो भी टाइप ऑफ एम्प्लॉय के केस में. और अगर मान लो बोल रहे हैं a part thereof in excess of 6 months, यानी कि मान लो किसी ने 11 years and 7 months काम किया, तो उसको राउंड ऑफ करके 8 कर देंगे. ठीक है, सिंपली यही बोल रहा है. अ पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो उसको वन कंप्लीटेड और सर्विस में राउंड ऑफ कर देंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, 6 से कम होता है तो वो उतना ही रहेगा. मान लो 11 years and 4 months होता, तो वो 4 months को कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही मानते हैं. या और अगर 7 months है तो एक्सेस ऑफ 6 months में जो एक्स्ट्रा पीरियड आ रहा है उसको राउंड ऑफ कर देंगे. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज पीस रेटेड एम्प्लॉय. पीस रेटेड एम्प्लॉय हमने पढ़ा है जो जिनको वेजेस मिलती हैं बाय पर कैलकुलेशन ऑफ देयर आउटपुट. तो इस केस में लास्ट ड्रॉन वेज होती है. देखो मंथली वेज की बात नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पे लास्ट ड्रॉन एम्प्लॉयर जिस भी हिसाब से उनको वेजेस देता है, मल्टीप्लाइड 15/26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months once again. एंड फाइनली एन एम्प्लॉय ऑफ अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट. सीजनल एस्टैब्लिशमेंट के केस में देखो हमने पुराने में कंटिन्यूस सर्विस के ईयर्स नहीं लिखे हुए थे ना, तो कैसे कैलकुलेट होगी उनकी ग्रेचुइटी. लास्ट ड्रॉन मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 7/26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीजन्स. क्या हो गया, मंथली वेजेस हो गई 7/26, 7 डेज के हिसाब से ले लो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीजन्स. क्योंकि कितने मंथ्स के लिए काम कर रहे हैं वो इट विल डिपेंड ऑन दैट. ठीक है, इट कैन बी तो 3 months के लिए फैक्ट्री खुलती है
5 मंथ्स के लिए फैक्ट्री खुलती है, तो क्या है सीजन के हिसाब, उसको कितने नंबर ऑफ सीजन्स काउंट करते हैं वो, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय ने जितने सीजन्स काम किया है वो मल्टीप्लाई कर देंगे and last on monthly wages. So that is about calculation of the amount of gratuity which is payable. ठीक है, मंथ किसे माना जा रहा है, देखो 26 डेज को, इसीलिए यहाँ पे 26 26 26 है डिनोमिनेटर. Piece rated employee last drawn wages will be total wages received during 3 months immediately preceding the termination of employment or number of actual working days in 3 months. क्योंकि देखो यहाँ पे piece rated employees के केस में लास्ट ड्रॉन वेजेस लिखे, लास्ट ड्रॉन मंथली वेजेस नहीं लिखी है. मंथली वेजेस का तो मतलब हो गया आपकी एक महीने की भी इतनी जितनी भी वेजेस थी, ठीक है. लेकिन लास्ट ड्रॉन वेजेस जो पीस रेटेड एम्प्लॉइज के लिए है, उसको टोटल 3 महीने पिछले 3 महीने में जो इन्होंने एक्चुअल वर्किंग डेज काम किया था उनकी जो सैलरी मिली है उससे हम लास्ट ड्रॉन वेजेस मानेंगे, ठीक है. एंड लास्ट ड्रॉन वेजेस डू नॉट इंक्लूड द ओवर टाइम. ये तो हमने वेजेस के डेफिनेशन में भी देख लिया था that for the payment of gratuity overtime wages are not included. Maximum amount of gratuity payable. The gratuity payable to an employer shall not exceed 10 lakh with effect from 24th May 2010. 24th May 2010 से पहले था 3,50,000, ठीक है. एंड हाइक इन ग्रेचुइटी लिमिट, इसके बाद भी गवर्नमेंट ने दोबारा लिमिट बढ़ा दी. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द सीलिंग ऑफ ग्रेचुइटी पेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 10 lakh to rupees 20 lakh with effect from 1st January 2016. ओके, तो क्या हो रहा है, ग्रेचुइटी टोटल मैक्सिमम ग्रेचुइटी पेबल कितना बनता है, 20 lakhs in case of government employees maximum and 10 lakh in case of all the other employees. बाकी आपको पुराना कितना था, कब से था, डेट्स वगैरह की जरूरत नहीं. यू कैन सिंपली से मैक्सिमम अमाउंट 10 lakh and 20 lakh in case of government employees, ठीक है. Gratuity in case of disabled employees for the purpose of computing the gratuity payable to employees employed after disablement on reduced wages. हो सकता है टेम्पररी डिसेबलमेंट की वजह से उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, बट रिड्यूस वेजेस की बात हो रही है, मतलब कि ही हैज कम बैक टू वर्क, ठीक है. देन उनकी कैलकुलेशन ऑफ वेजेस कैसे होगी, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी कैसे होगी, फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग द डिसेबलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ wages last drawn by the employee at the time of disablement. डिसेबलमेंट होने से पहले का जितने भी ईयर्स या मंथ्स थे, तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ डिसेबलमेंट. वेजेस लास्ट ड्रॉन मंथली वेजेस जो भी तब तक उनको मिल रही थी वो. एंड फॉर द पॉइंट सेकंड पार्ट, फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डिसेबलमेंट आफ्टर ही हैज डिसेबल्ड एंड नाउ कम बैक टू द जॉब, तो उनकी सैलरी कम हो गई है बिकॉज उनकी कैपेसिटी काम करने की कम हो गई है. देन इन दिस केस द कैलकुलेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ reduced wages last drawn by the employee at the time of termination of service. Okay. Better terms of gratuity. An employee may be sometimes be entitled to receive better terms of security under any award, settlement or contract with the employer. Such an award, settlement or contract shall be valid and effectual. यानी क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कैलकुलेशन का ग्रेचुइटी का, इससे बेटर भी हो सकता है एक एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी मनी पे करे अंडर, या तो उनको कोई अवार्ड दिया गया था कि फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और समथिंग, जिसमें एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस किया कि आपकी रिटायरमेंट में आपको इतनी ग्रेचुइटी और देंगे, या फिर कोर्ट का कोई केस था जिसमें डिस्प्यूट हुआ था कुछ एंड कोर्ट ने ऑर्डर किया था, या वो डिस्प्यूट की सेटलमेंट हुई थी बेटर ग्रेचुइटी के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. तो इस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बेटर टर्म्स अगर, तो वो एम्प्लॉयर को अबाइड करनी पड़ेंगे, इट विल बी वैलिड एंड इफेक्चुअल. ओके. फोरफीचर ऑफ ग्रेचुइटी. फोरफीचर यानी कि एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी या तो पूरी तरह नहीं दे रहा है या फिर कुछ टर्मिनेट कर दिया. क्या कब क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, फोरफीचर ऑफ ग्रेचुइटी टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज और loss. If the services of an employee are terminated for any act, willful omission or negligence resulting in damage, loss or destruction of property of the employer, then the gratuity payable to the employer shall be forfeited
टू द एक्सटेंट ऑफ सच डैमेज और लॉस। यानी कि जितनी ग्रेचुइटी एम्प्लॉय को मिलनी थी उससे कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? उन्होंने कोई ऐसा एक्टिविटी किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन में या तो एक्टिविटी किया या नेग्लिजेंस हुआ। ही वॉज नेग्लिजेंट इन हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल, और ही विलफुल ओमिशन, उन्होंने जानबूझ के कोई काम नहीं किया जो करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से देर वॉज सम लॉस, देर वॉज सम डैमेज, देर वॉज सम डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर। तो उसका जो अमाउंट ऑफ डैमेज, जो अमाउंट ऑफ लॉस होगा, वो एम्प्लॉयर उनकी अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी में से डिडक्ट कर सकते हैं, काट के देंगे फिर वो। तो जितनी मान लो उन्होंने 10 लाख अगर उनकी ग्रेचुइटी बनी थी, 2 लाख का उन्होंने ऐसा कोई एम्प्लॉय ने अपनी गलती से काम कर दिया जिससे लॉस हो गया, तो उनकी ग्रेचुइटी में से 2 लाख रुपीज कम कर देंगे। तो ये 2 लाख क्या है, फोरफीट हो जाएंगे, फिर तो उनको 8 लाख मिलेंगे फिर। फॉरफीचर ऑफ होल और पार्ट अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी, ये भी हो सकता है। इफ द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉयर आर टर्मिनेटेड फॉर हिज राइटियस or disorderly conduct or any other act or violence on his part, or for any act which constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of employment, then the gratuity becomes maybe wholly or partially forfeited। क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय, वन सेकेंड, ऑब्वियसली एम्प्लॉय का फॉल्ट है तभी कुछ होता है। ओके, एम्प्लॉय ने क्या किया? ही इंडल्ज्ड इन सम वायलेंट or disorderly conduct or any other act of violence on his part, for any act which can be offensive involving moral turpitude, morally उन्होंने कुछ गलत काम किया, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई वायलेंट बिहेवियर था उनका फैक्ट्री में जब वो थे, या फिर he did not conduct himself in the right manner।
so sorry, something happened with my system. वो disconnect हो गया था. I'm just share the PPT again. Okay. So I was talking to you about calculation की हम बात कर रहे थे. Forfeiture, sorry, forfeiture की बात कर रहे थे हम. So what we said was कि employee की due to some immoral behavior, incorrect behavior, violent behavior, he did something really wrong and he committed some kind of an offense. So इस case में the services of the employee were terminated. तो यहाँ पे employer उनकी gratuity भी forfeit कर सकता है. completely सारा amount forfeit करना है या partially करना है, कितना करना है, that will be decided accordingly as per जो भी terms and conditions हैं या जो भी appropriate लगेगा in the situation, but it can happen. Condition of forfeiture: in order to forfeit the gratuity of an employee, there must be a termination order containing the charges as established to the effect that the employee was guilty of any of the aforesaid misconducts. In the absence of such a termination order, the employee does not forfeit his rights to gratuity. तो यानी कि अगर employee के ऐसे किसी behavior की वजह से उनकी gratuity forfeit करनी है अगर employer को, तो उनको उन्हें terminate करना होगा job में से और उनको वो टर्मिनेशन ऑर्डर देना होगा और लिखना होगा कि क्यों दिया जा रहा है वो, किन चार्जेस पे, किन बेसिस पे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट वाज द मिसकंडक्ट, व्हाट वर द चार्जेस दे फाउंड द एम्प्लॉय गिल्टी ऑफ, एंड इस रीजन से हम उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं सर्विस में से और उनकी ग्रेचुइटी फॉरफीट कर रहे हैं. In the absence of such a termination order, the employee does not forfeit his rights to gratuity. Employee की जो भी gratuity बनती है वो फिर भी claim कर सकता है अगर ये termination order employer ने नहीं दिया. Okay, so this is very important. Condition for forfeiture की termination order है वो जरूर होना चाहिए. अब इस केस में भी there have been different cases. Jaswant Singh versus Bharat Coking Coal Limited 2007. Termination of service for any causes enumerated in section 46 is imperation. So forfeiture of gratuity by order of disciplinary authority after retirement of the petitioner was not proper and valid. क्या हुआ इस केस में कि जो एम्प्लॉय था, he was already retired. ठीक है, तो वो कह रहा है कि तब उसके रिटायरमेंट होने के बाद आप कह रहे हो कि उनका कोई मिसडिमीनर था, कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से टर्मिनेट कर दिया. तो forfeiture by order of the disciplinary authority after retirement of the petitioner is not proper and valid. आप उनकी रिटायरमेंट हो गई है, आप किस ग्राउंड्स पे कर रहे हो? इनके केस में टर्मिनेशन ऑलरेडी हो चुका है. टर्मिनेशन ऑफ this employer has already happened because of his retirement. उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है. तो इस केस में जो गवर्निंग अथॉरिटी है, ये आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो सकती है या आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है, उन्होंने they did not have the reason to stop his gratuity. Forfeiture of gratuity was not valid in his case after his retirement. Wazir Chand versus Union of India 2001. The appellant ever after superannuation continued to occupy the quarter and the government in accordance with the rules charged penal rent from his and after adjusting other dues the gratuity amount offered to be paid. The court held there is no illegality in this amount of gratuity. क्या होता है, एम्प्लॉइज को कई बार वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं ना रहने के लिए, तो क्या हुआ इस पर्सन ने, अब उनकी रिटायरमेंट हुई, उन्होंने जॉब छोड़ दी, तो उन्होंने he has to leave that quarter. He did not do that. He continued to occupy the quarter and the government जो इस अकॉर्डिंग जितने भी उनके रेंट बनना शुरू हो जाता, रेंट बनता, पेनल्टी बनती और चार्जेस बनते अलग अलग, क्योंकि उन्होंने वेकेट नहीं किया है, वो रह रहे हैं वहां पे अभी भी जॉब के बाद. तो अब इस केस में the gratuity offered to be paid can be adjusted for all of these dues. The ये पढ़ो last line. The government, in accordance with the rules, charged
penal rent from him, and after adjusting other dues, the gratuity amount offered to be paid. The court held there is no illegality in this amount of gratuity. कि अगर आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में रह रहे थे जिसके बाद आपका वहां पर रहना अलाउड भी नहीं था, तो अगर आप रह रहे हो, आपको रेंट पे करना है, आपको डिफरेंट पेनल्टीज देनी है, आपके अलग अलग चार्जेस बनेंगे। गवर्नमेंट ने उनकी जो ग्रेचुइटी थी उसमें से उसे डिडक्ट कर दिया, तो वो कोर्ट में चले गए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। द कोर्ट सेज देयर इज नो इलीगैलिटी इन दिस अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। ओके, क्योंकि उनका ही चार्जेस बनते थे। एम्प्लॉयर डिसाइड्स ग्रेचुइटी में से डिडक्ट कर लो, वो हमने पढ़ा ना, कर सकते हैं, फोरफीट हो गया एक तरह से पार्ट ऑफ अमाउंट। केसी मैथ्यू वर्सेस प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड। Withholding of gratuity is not permissible under any circumstances other than those enumerated in section 46, and the right to gratuity is a statutory right. ये section 46 जो हमने पेमेंट से रिलेटेड सेक्शन पढ़ा है ना, वही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अदर देन इन दीज सर्कमस्टांसेस, कि उन्होंने कुछ कर दिया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉई ने कुछ किया। देखो 46 क्या है, फोर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी। एम्प्लॉयर को कोई डैमेज हुआ या फिर ही डिड सम मिसडिमीनर जिसकी वजह से अब फोर फीचर होगा ग्रेचुइटी का। इन ऑल अदर केसेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी रोक नहीं सकता, उनको ग्रेचुइटी मिलना स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट है मतलब लॉ में लिखा है, बाय लीगल स्टैट्यूट he must be provided it. So withholding of gratuity is not permissible under any other case. Employer has to do that. कब होता है forfeiture? दो केसेस में होता है। एक है forfeiture to the extent of damage, और wholly or partly due to some poor conduct. ठीक है। Finally, Travancore Plywood Industries Limited versus Regional Joint Labour Commission. Refusal of employee to surrender land belonging to the employer is not a ground to withhold gratuity. Employees ने मना कर दिया to surrender a land belonging to an employer is not a ground. कई बार होता है ना कि employer अपने land को employee को दे देते हैं for his work for his business, and उस पे काम करवाते हैं। तो एक तरह से क्या हो जाता है, लैंड की ओनरशिप तो नहीं की है, काम एम्प्लॉय को देना है कि इतने पीरियड के बाद आप सरेंडर कर दोगे। अगर एम्प्लॉय रिफ्यूज कर दिया फॉर सम रीजन, इट इज नॉट अ ग्राउंड टू विदहोल्ड ग्रेचुइटी। किस रीजन से किया था या क्यों किया था, कब तक किया था, ये उस केस के वो होंगे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे। कोर्ट ने, यहाँ कोर्ट नहीं था, यहाँ रीजनल जॉइंट लेबर कमीशन था। दिस अथॉरिटी डिसाइडेड, तो देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ गई ना, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अपॉइंटेड अथॉरिटी आ गई। इन्होंने डिसाइड किया कि दीज आर नॉट अ ग्राउंड टू विदहोल्ड, आप इनकी इस रीजन से आप इनकी ग्रेचुइटी नहीं रोक सकते। तो वट एवर माइट बी द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हो सकता है अब आपको लगे कि दे रिफ्यूज, तो ये तो मिसडिमीनर हो गया, ये तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, तो फोरफीचर हो जाएगा। अब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द केस पे डिपेंड करके द अथॉरिटी डिसाइड दिस। ओके, दिस इज अबाउट योर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी फॉर टुडे। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपके क्या डाउट्स हैं मुझे बताओ। इंडस्ट्रियल लॉ में केस स्टडीज और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का चांस कम है बिकॉज आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि जैसे अब देखो ग्रेचुइटी में बोलते हैं बेसिक वेजेस प्लस टीएनएस अलाउंस ऐड करके जो सैलरी बनती है उसका कैलकुलेट होता है। तो अब उसको पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला क्या है उसका, कि मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड 15/26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो आपको ऐसे हमने ऐसी बाकी पुरानी यूनिट्स में बोनस में पढ़ा और इसमें प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड में पढ़ा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और केस स्टडीज केस स्टडीज ऐसे एग्जाम्पल की तरह आ सकता है कि दिस हैपेंड, तो ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो अब जैसे फोरफीचर हुआ ग्रेचुइटी का, समबडी हैज आस्क्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ फोरफीचर पार्ट। ओके, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर कौन होता है, उसका वर्क क्या है? सेंट्रल पीएफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हमने प्रोविडेंट फंड के केसेस में पढ़ा था, डोंट मिक्स दैट वर्क विद ग्रेचुइटी के केस में जो अथॉरिटी होती है। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को इट इज अ सेपरेट बॉडी जो गवर्नमेंट बनाती है, जिनको अथॉरिटी दी जाती है फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एक्ट, एंड उनको जो भी पावर्स एंड अथॉरिटीज हैं वो सब हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, तो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बस यही डाउट्स है ना। ठीक है, मैं फोरफीचर रिपीट कर देती हूँ और आपका केस। तो देखो केस ऐसे आ सकता है आपका, हो सकता है
कि अभी आई कैन नॉट टेल यू फॉर सर्टेन कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता ना। सो आपका केस स्टडीज ऐसे बन सकता है कि फॉर फीचर फॉर एग्जांपल समबडी इज आस्क्ड कि एक एम्प्लॉयर ने आपको एक 2 लाइन की स्टोरी बता देंगे कि एम्प्लॉयर ने ऐसा ऐसा किया जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एम्प्लॉयर के फैक्ट्री में सम एम्प्लॉय डिड समथिंग जिसकी वजह से कोई फायर हो गया था, ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ द इक्विपमेंट व्हिच ही वाज सपोज्ड टू डू, तो ओमिशन या नेग्लिजेंस हो गई, एम्प्लॉय की गलती हो गई, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयर ने उनका 2 लाख रुपए का ग्रेचुइटी में से डिडक्ट कर लिया। तो वाज इट एंड ही वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट ने मना कर दिया। तो आप ये साइड कर सकते हो कि under the rules of the Payment of Gratuity Act for forfeiture of gratuity, it says that forfeiture of gratuity to the extent of damage or loss can happen if the services of an employee are terminated for any act, willful omission, or negligence resulting in damage, loss, or destruction of the property of the employer. एम्प्लॉय की फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, क्यों किया? समथिंग ही डिड, व्हाट डिड ही डू? ही आइदर डिड समथिंग ही वाज नॉट सपोज्ड टू डू, विलफुल ओमिशन या नेग्लिजेंस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैप हो गई फैक्ट्री में, या फिर उन्हें कोई काम करना था जिसकी वजह से पेनल्टी लग गई है अब, तो उनका विलफुल ओमिशन रहा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया। तो अब क्या है? There has been damage or loss or destruction of property of the employer. The gratuity payable to the employee shall be forfeited to the extent of such damage or loss. जितनी gratuity बनती थी उसमें से कुछ अमाउंट काट के देंगे, वो जो कितना अमाउंट फॉर फीचर होगा उस अमाउंट का जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया था या जिसकी डैमेजेस हुई। फॉर फीचर है एक तरह से जो सम मिलना था उन्हें वो अब उन्हें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ही डिड समथिंग जिसकी वजह से लॉसेस हुए हैं, जिसकी वजह से कोई डैमेज हुआ है, कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है। एम्प्लॉयर ने कहा कि अब आपका इतना ये जो डैमेजेस हुई है आपकी ग्रेचुइटी में से काट रहा हूँ, तो द ग्रेचुइटी पेबल शैल बी फोरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट डैमेज और लॉस। एक सर्कमस्टांस होता है ये। सेकेंड होता है होली और पार्टली। देखो दोनों में एक कॉमन फर्स्ट पॉइंट सेम है, सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय टर्मिनेटेड, सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय टर्मिनेटेड, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ फॉरफीचर में हमने पढ़ा था। चलो पहले सेकंड पॉइंट में कंप्लीट करवाती हूँ। सर्विसेज आर टर्मिनेटेड फॉर हिज राइटियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट और एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज पार्ट or for any act which constitutes an offense involving moral turpitude, providing that this offense is committed by him in the course of his employment. फिर से एम्प्लॉय ने कुछ किया, क्या किया? राइटियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट और वायलेंस। फॉर एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरली इनकरेक्ट उनका बिहेवियर था या वायलेंट बिहेवियर था एट द टाइम ऑफ हिज प्रेजेंस इन हिज जॉब, उस केस में एम्प्लॉयर डिसाइड कर सकता है कि इनकी ग्रेचुइटी कैंसिल कर दें, या तो पूरी तरह कर दें या पार्शियली कर दें, तो उनको वो पावर है for such a behavior if the services are terminated. Condition क्या है forfeiture की? This is very important. So in order to forfeit the gratuity there must be a termination order. इसीलिए दोनों के first point में देखो if the service of employees are terminated, if the services are terminated लिखा है। ये termination करेंगे, इसका एक जो order होगा उसमें लिखा होगा explanation of the reasons होंगे why the charges established to the fact that employee was guilty of the aforesaid misconduct, जो भी उन्होंने मिसकंडक्ट किया वो रीजन उसमें लिखा हुआ, इस वजह से उनका टर्मिनेशन हो रहा है। ये टर्मिनेशन ऑर्डर इनको देंगे तभी फोरफीट कर सकते हैं उनकी ग्रेचुइटी। अगर ये टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं दिया then the employee does not forfeit his rights to gratuity, then employee can still claim कि मुझे ग्रेचुइटी क्यों नहीं मिला अगर टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं दिया तो। सो दैट ये करना एम्प्लॉयर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? एनी अदर डाउट? आई होप इट इज क्लियर नाउ जिन्होंने पूछा था। Who selects the authorized officer and what is its work? Authorized officer हमने अभी पढ़ा, तो appropriate government अपॉइंट करेगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डेफिनेशन में पढ़ा था ना अभी हमने, देखो an authority appointed by the appropriate government who will be responsible for the administration of the act, and different authorities may be appointed for different areas. appropriate government appoint कर रही है, ठीक है, और employer तो है ही
सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट है, देखो अलग अलग, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है, या फिर एनी पर्सन हु इज द ओनर और द मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सो ऑन। जो अथॉरिटी की आप कह रहे हो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके, एनी अदर डाउट? I hope it's now clear. If there are no more doubts, I will end the class for today and we'll continue this topic in the next class.